just before we begin the session, मैं थोड़ा सा छोटा सा quickly एक technical brief दे देता हूँ. पहली बात तो नमस्कार everybody, and what we are going to do is we are going to record the session offline. So I have to take everybody off video while we are doing the session, while getting the presentation of Maharaj Sri. And once we finish the session, we'll have few questions from RC and from me, and then we are going to open this up to the participants. And we can frame your question and you can present it out. I'll try to moderate as best I can. So, Aryan, in the frame where we have you, me, and Neeraj ji, आप Maharaj Ji को भी उसमें ले आएंगे ना? हाँ. He's always there. Maharaj Ji is always there. He is always there, except I'm going to. I have to take the other videos off for now. Yes, please. For a short while, for about 15, 20 That's it minutes. for the session. Yeah. Kindly please bear with me. Shall we start? Just Hello? Yes, he's here now. Yes, I'm ready. We are all four are together. Are Hope we? you can hear me. Yeah. Yes, sir. We can hear you. Neeraj ji, please start. Namaskar, Pujya Sahasrapideshwar, Pujya 108 Shri Dwarkesh Lalji Maharaj Shri को नमन, बहुत कोटि कोटि pranam that you could take out time to be with us today. It is a great honor, a great blessing from Ma Yamuna and Shri Krishna to Draupadi Trust. And we are very grateful to Shri Ranjit ji for having helped us in this thing. I still remember the day at the Yamuna Ghats when I out of the blue heard you talk about me, and I was feeling so blessed, so blessed. So thank you so very much for being here. I have gone through your CV, and it's absolutely an enriching experience to have such a knowledgeable person among us, especially a spiritually enlightened person. And as the program goes, of course, that will be elaborated. And I wish to just take just a few minutes to introduce our trust. The Draupadi Dream Trust, Maharaj Shri started in 2003 in a very, very strange circumstances. And some mysterious happenings happened, and I got connected to my ancestral land in Kampilya, which is the ancient kingdom. Later became the Rajdhani of Panchal and famous as the birthplace and Swayamvar place of Ma Draupadi, Devi Draupadi. So the trust is working since 2003 for a very simple cause, and it's so sad that we have to actually still do it, to create a better understanding and appreciation of ancient Indian civilization, culture, and itihasa. Because we found that itihasa has been absolutely obfuscated. We have not been taught our itihasa, and we have been completely disconnected with our cultural and civilizational ethos, which brings us closer to Ma Ganga and Ma Yamuna, or to the Sanskriti, and all to our devtas and devis who have been such an inspiration in our life. So this trust works on recreating. We work through documentation, awareness. We have done almost 8 international conferences, and we are very fortunate that while in this journey of ours, which started in 2003, we have had the support of some international and national scholars. And I'm sure you, being such a learned person, must have heard of the name of Professor B.B. Lal, who celebrated 100 years on 2nd May. I happened to connect with him at very place called Hastinapur. So, and then along with that, scholars from America, Canada, Greece, Italy, France, and of course, India, almost 60, 70 scholars are with us in this effort. And our aim is to make our itihasa as itihasa studied in books. And so we managed to do by 2017, we had actually established that Mahabharata epic is an itihas. And now our next effort on Mahabharata is to fix the chronology and the dates. And besides that, of course, related social issues of empowerment of women and youth we are doing, and any social cause that links to sort of promoting our Sanatan Dharma, that we take up and advocacy for that.
Our current focus is two places linked to Devi Draupadi, her place of birth, Kampilya, and Indraprasth, for which, as the questions come, we will tell you what it is, because we are so keen to hear you now. And so with that, I'd like to tell you that today's program has been made possible by your younger brother and your dear Sri Ranjit Chaturvedi ji, who has been a real source of inspiration for me personally and for our trust. Because in spite of being a businessman internationally traveling, yet he has taken out time to take up the cause of Bharatiya Sanskriti and Sabhyata and Sanatan Dharma, and his this Padayatra of Yamuna, which you blessed that day, has really been a very, very inspirational event for us. And so with his support and the support of Aryan, who's been helping our trust in terms of the digital media and promotions, etc., for a long time, this as a CSR, he does this with us like a real brother. He has been helping me out. So with the help of these two, and Aryan runs a company which is into advertising and films and media promotions. And he has the credit of, actually launching the first web series. So these two enterprising personalities in my life have enriched the trust work and today made it possible. I would like to now hand over to RC to please carry with. RC is the host for today. So he is going to now take forward the session. Pranam. Maharaj Shri. यमुना मैया की जय, बांके बिहारी लाल की जय। नीरा जी ने थोड़ा बहुत बताया है अपने द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट आर्यन और हमारे बारे में कैसे जुड़े हैं। अभी सारे जो लोग इसमें आए हैं इस सेशन में, I would like to formally now introduce His Holiness Shashtapithadishwar Goswami Shri 108 Shri Dwarkesh Lal Ji Maharaj Shri of Vadodara and Kankroli. For there is a sound. Goswami ji, I think आपको भी mute करना पड़ेगा, नीरा जी आपको भी mute, because since this is being recorded. I think we just need to tell him how many people, some important people have joined. After this, you will please. Beta thoda isko. So first, let me introduce Maharaj Shri to the people who know him, and this may be a reintroduction, a more detailed synopsis of his profile, of his legacy. And for those who don't know him, dil tham ke baith jaiye, because we're about to hear something very interesting and some amazing facts about a wonderful human being. We are all shining in the pedigree of Jagat Guru Srimad Vallabhacharya Ji, who is the founder of the Pushti Bhakti Marg, which is the path of grace. And Pujya Goswami Shri Dwarkesh Lal Ji is the 14th Gaddipati, enthroned at the Shastapit, which is one of the 7 thrones of Shri Vithalnath Ji Gosai Ji, the son of Jagat Guru Srimad Vallabhacharya Ji. He is the head of the Shastapit at Vadodara and Ahmedabad, besides having temples situated at Amritsar in Jalandhar, Punjab, Gokul in Mathura, Uttar Pradesh, Kanpur and Shergarh in Madhya Pradesh, Gondal and Baria in Saurashtra. Apart from this, we are pleased and proud to inform everybody that there are some overseas mandirs of like Pushti Dham in Florida, Gokul Dham in Atlanta, Vallabh Dham in Hartford, Connecticut, Shri Ji Dham in Leicester, United Kingdom, Shri Maya Krishna Dham in San Francisco, Shri Ji Dwar in Chicago, and Vaishnav Parivar of New Zealand. So he has not only been spearheading temples and institutions in India, across India, but also internationally. Despite being an Acharya in Vedanta and Sanskrit literature, having his law knowledge under the guidance of Shri Vijayara Givesh Adacharya Ji of the Ramajuna pedigree, he also is well versed in 7 languages. He is a painter, he is a musician,
who's proficient in playing the mridanga. He has various compositions in Gujarati, Hindi, Vraj Bhasha, and is inclined especially towards Urdu ghazals. He has his name in many sectarian articles, books, and poetic compositions. And on the 16th of April, he was enthroned as the youngest Gaddipati of the Shastrapeeth, one of the 7 Gaddis of Pushti Sampradaya. In the year 1990, he organized the Pushti Vishwa Yatra and visited England, America, France, Italy, Switzerland, Portugal, Canada, and various other parts of the world to cultivate and propagate Pushti Dharma, the path of grace. In the year 1992, you inspired and graced the Bhagwat Saptah at London and also presided 6 live shows of the Mahabharata on the special invitation of Shri B.R. Chopra, the filmmaker. In the year 1994, you visited Africa to create awareness about the Sanatan Hindu Dharma and kindle Pushti Chetana in youngsters of Indian residing there. He has been continuously traveling across the country to spread Vaishnav Sangathan, unity amongst fellow men, and to propagate the Pushti Marg. He's a regular invitee at various social organizations and specially inspiring and promoting youth forums with more than 26 branches all over Gujarat. He has accorded Diksha to thousands of followers among the Pushti Margiya families. And approximately 15,000 Vaishnav family members are working non-stop under his inspiration and guidance. His only lifelong ambition is to propagate the Pushti Marg. In August 2000, you were called upon by the United Nations to take part in the World Millennium Peace Summit of spiritual and religious leaders. And indeed, it was a matter of pride for Pushti Marg that you were the youngest religious leader called upon by the United Nations amongst 1,200 spiritual leaders all across the world. After the summit, you organized a Dharam Yatra and you were part with the Vishwa Hindu Parishad, under which you addressed the residing Indian youth in New York, Charlotte, New Jersey, Orlando, Chicago, to propagate Hindu culture and religion. As the chairman of Shri Vallabh Vishwa Vihar Education and Charitable Trust, you established the International Youth Forum at various places in the United States and London, in which today's youth are encouraged towards culture, religion, social activities, thus becoming a responsible part of the society. In June 2001, you were felicitated by the Lok Ratna Samman presented by the Uttar Pradesh government. In 2002, you had handed over the newly constructed Amarpur village destroyed in the 2001 earthquake, and the village was thus renamed as Shri Vallabhacharya Nagar, having 180 houses, serving a population of nearly 650 families and people. You are the honored member of the General Body of Indian Council Religious Leaders, and this body represents the Indian subcontinent to the World Council of Religious Leaders at the United Nations. You had also organized the first ever surgical camp in Vadodara, where doctors from the USA performed almost 253 operations free of cost over a period of 7 days. In the year 2006, you organized the Pushti Mangalaya Mahotsav in the United Kingdom. And in the year 2006, again, Maharaj Shri organized the World Gujarati Conference on September 3rd, 2006. In December 2006, again, Maharaj Shri was honored as the Gujarat Gaurav Award by the Bruhad Mumbai Gujarat Samaj for his outstanding contribution in the field of social services. In 2007, January, a huge Vaishnav Yuva Sangathan Adhiveshan was held in Nadiad, and a blood donation camp was held there with 1,100 blood units being collected. In November 2008, you had organized a Vraj Yatra by the name of Brajanand Mahotsav, and a special train was arranged from Vadodara to Mathura, in which 3,000 Vaishnavas had participated. In 2009, you had organized the Pushti Satsang Samaroh,
in the Amritsar temple, where a huge Vaishnav crowd had gathered and had taken part in the Utsav, in the Maha Utsav. In 2009, you visited Australia, Fiji, New Zealand, Singapore, Malaysia for religious upliftment. And in 2009, there was a Pratishtha Mahotsav held at Sri Kalyan Pushti Haveli, Vastrapur, in which Honorable Chief Minister and Home Minister of Gujarat were present. Maharaj Shri, you are also the chief patron in Sri Vallabh Nidhi, United Kingdom of the Wembley Mandir, which was inaugurated by you in May 2010. You are an inspirational and guiding force behind many social uplifting activities, a strong support for downtrodden and deprived sections of the society, a great motivation for spiritual awareness among aspiring youths. You have successfully cultivated and nurtured several institutions, namely Sri Vallabh Vihar Education and Charitable Trust, Sri Kalyan Rai Ji Sarvajanik Charitable Trust, Sri Pushti Prabha Memorial Trust, Sri Vallabhacharya Kalyan Kripa Trust, Sri Vallabh Vadil Vihar Trust, Sri Sarvottam Charitable Trust, Sri Vallabhacharya Mahaprabhuji Navnidhi Charitable Trust, the Vadodara Society for Prevention of Cruelty Against Animals, Sri Kalyan Rai Ji Sarvajanik Charitable Trust in Rajasthan, Jayanti Lal Chand Charitable Trust, and Pushti Parivar, Mumbai. Should I say more? I shouldn't. But I would like to say one more thing, that you are, as I see, Jesht Putra of Ma Yamuna. And I see her in you. I see a lot of her in you. I see a lot of Krishna in you. I see a lot of Dwarkadish in you. आपका स्वागत है, आपको प्रणाम है, और आपको बहुत बहुत स्नेह है. Now I hand over to Aryan. Aryan, please take us through and brief us about the session and how we will be proceeding forward. Thank you. You have to unmute yourself, Aryan. I was so engrossed with the introduction, I actually forgot to unmute myself. Welcome, everybody. Just sorry to disturb you. After you finish, just give one line of names of everybody who has joined. So that's yes. I'll update everybody who is here. So in Indraprastha Talks, we are trying to create a platform where we can connect, rather where we can rediscover our history, our culture, and rediscover the essence of Bharat altogether to make it Mahabharat again. And culture, Indian culture, Bharatiya Sanskriti, has been the source of inspiration, being inclusive and holistic for the whole world. और इसी वजह से आज के दिन में exploring Indian culture, exploring the essence of it has more relevance than ever. And for this, I mean, who is a better person than Maharaj Shri himself? So I'll hand it over to him. And just before that, let me update Neeraji. We have Sejal, we have Swami Amritanand Dev Tirth, we have Pradeep Kumar, we have Navneet Shah, and I can see somebody with Galaxy A21s, but I can't read. I really don't have the name of that person. Neeraji, you are mute. Up mute hai. Maharaj Shri, some eminent personalities who've joined us is Dr. Nageshwar Rao, who's the former director of the Central Bureau of Investigation. And Neeraji has been kind to invite him. And Neeraji says is connected to bringing the Hindu Dharma, our Sanatan Dharma, and he's working towards that. We also have Dr. Nilotpal Goswami ji, who's the Director General in the Government of India for State Finances.
He's a very celebrated IAS officer. We have Hitesh Trivedi and Ojas Hirani, who are from your state and who are great architects who are working on some very prestigious projects related to Sanatan Dharma and bringing our culture and history to the forefront. Neeraji, would you like to talk about some more people who are here? Well, I think you have mentioned. I think since you were on mute, I just took the liberty. No, it's good. Can you hear me now, please? Yes, we can. Okay. So I think we are getting Mr. Rao is in our efforts to get the Yamuna and Sri Krishna restored at our Indraprasth. So that is one of the common platforms. We have Vedveer Arya, who has actually redone the actual chronology of Indian history. And then I think Shankaracharya ji has joined. He was just saying he's supposed to join. I think you have already met him. And we have a lot of followers of Maharashri from Canada and USA and different parts of Gujarat who have joined us. So I think we are all eagerly waiting. If I missed out anybody, if in the question answer, we'll take it up. अब हम इनको सुनना चाहते हैं. Here, Maharashri. आर्यन सबको म्यूट करके बस महाराष्ट्री को लाइव कर दीजिए. जय हो. Yes, sir. मेरा बेटा मेरा है ना म्यूट कर दो. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. प्रभुर्नंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा. कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः. श्री गोवर्धन गिरधराय नमः. श्री यमुनायै नमः. सर्वे भवन्तु सुखिनः. आज फर्स्ट ऑफ ऑल I pay my gratitude to all members of Indraprasth Talk and Draupadi Dream Trust, Atmanirbhar Project, Crosals Media और साथ साथ में इंद्रप्रस्थ टॉक के सूत्रधार श्री नीराजी मिश्रा, श्री रंजीत जी चतुर्वेदी जी, जिनकी वजह से मैं आप सभी के दर्शन करने के लिए और संवाद करने के लिए उपस्थित हूँ, और साथ ही साथ जो हमारा सेतुबंधन एमसी के रूप में कर रहे हैं महोदय श्री, और आप जिन सभी महानुभावों के नाम इस संवाद में उपस्थित होने के लिए पूर्व में कहे गए हैं, उन सभी महानुभावों के हर व्यक्ति का अलग से नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन यहाँ से मैं आप सभी को अपने प्रणाम अभिव्यक्त कर रहा हूं, अपने प्रणाम प्रेषित कर रहा हूं। सबसे पहले एक ऐसे दौर में हम और आप सभी एकत्रित हुए हैं जहां महामारी के कारण से अध्यात्म को समझने की एक नई ऊर्जा सभी के हृदय में प्रकट हुई है, क्योंकि अपनी ओर देखने का, अपने अंदर देखने का अवसर इन लॉकडाउन के समय में हर किसी को प्राप्त हुआ है। हमें लगता है कि महामारी से पूरी विश्व की मानव सभ्यता संक्रमित हुई है, लेकिन साथ साथ में इस रोग के कारण से देह की हानि हुई है, लेकिन रोग के कारण से प्रकृति और आत्मा, प्रकृति और पुरुष
जो हमारे अंदर अंतरात्मा के रूप में विराजमान है, उन सभी का एक नया स्वरूप, एक नया आत्मचिंतन, एक नया रूप हम सभी के सामने प्रकट हुआ है। बड़े अनुग्रहित भाव से श्री मीरा जी को और रंजीत जी को, नीरा जी और रंजीत जी को मैं बहुत अनुग्रहित भाव से प्रणाम कर रहा हूँ, जिन्होंने ये संवाद को स्थापित करने के लिए इंद्रप्रस्थ टॉक के द्वारा आज का विषय दिया गया, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर एंड भारतीय संस्कृति। हम जब भी इंडियन कल्चर की बात करते हैं, इतिहास की बात अभी नीरा जी कर रही थी। इतिहास जिसका कभी ह्रास नहीं होता है, पुरातन अपि नवम, जो पुरातन होते हुए भी जब उसे देखा जाए, जब उसका संशोधन किया जाए, जब उसके पृष्ठों को खोला जाए, तब वो हमें नया अनुभव कराए, उसी का नाम इतिहास है। पुरातन अपि नवम। और इसीलिए हमारे ग्रंथों को पुराण कहा गया, क्योंकि हर पुरानी बात को आज के समय में रिलेट करते हुए उन पुराणों ने हमें अपनी जीवन शैली को सिखाया है। और सबसे पहले हम जब कल्चर की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो किसी भी हिस्ट्री को या किसी भी परंपरा को, किसी भी धर्म को, किसी भी विश्व के प्रांत को समझने के लिए एजुकेशनल रिसर्च के रूप में 5 अलग अलग लेवल्स पे उसका संशोधन किया जा सकता है। जैसे किसी भी धर्म का अगर संशोधन करना है, यहां जब मैं धर्म कहता हूं तो मैं आध्यात्म की बात नहीं करता हूं। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी का धर्म जिसे जाना जा सकता है और आध्यात्म जिसको प्रैक्टिस में रख के जिया जा सकता है। स्पिरिचुअलिटी जो हम डे टू डे प्रैक्टिस करते हैं वही आध्यात्म है, जिसको अवयम धारयति इति धर्मः, जिसको हम धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं और जिसके अनुसार जीने का संकल्प लेते हैं, जो विचारधारा है, उस परंपरा को हम धर्म कहते हैं। और उनको 5 अलग अलग एंगल से हम समझ सकते हैं। हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कल्चर, रिचुअल्स एंड फिलॉसफी। इन 5 अलग अलग स्तर पे इसका जब मूल्यांकन किया जाता है, तब हम किसी भी धर्म को, किसी भी प्रांत को और किसी भी विचारधारा को समझने के लिए कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। और इस कंपैरेटिव एनालिसिस को करने के लिए, संस्कृति को समझने के लिए, हमारे नीतिशास्त्र के धर्मग्रंथ क्या कहते हैं? धर्मग्रंथ कहते हैं, को धर्मः दर्शनम किम वै काच तेषां पुरा कथा भाषा भूषा कलाश्चैव संस्कृति षड लक्षणा। किसी भी संस्कृति को अगर समझना है तो को धर्मः, उस संस्कृति का धर्म क्या है? को धर्मः काच तेषां पुरा कथा, उसकी परंपरागत इतिहास की कथा क्या है, उसके पीछे का आइडियोलॉजिकल जो पूरा जो इतिहास का दर्शन है वो क्या कहता है। को धर्मः दर्शनम किम वै, उसकी फिलॉसफी क्या है। दर्शनम किम वै काच तेषां पुरा कथा। तो 3 बातें, धर्म क्या है इसे समझना, फिलॉसफी क्या है इसे समझना, और काच तेषां पुरा कथा, पुरातन कथाओं में से क्या सार और क्या परंपरा, क्या वर्ष और किस प्रकार की देश काल परिस्थितियों का वर्णन उन पुरातन ग्रंथों में किया गया है, उसका संशोधन करना, उस पर चिंतन करना, उसके बाद उस संस्कृति को समझ सकते हैं। भाषा भूषा कलाश्चैव संस्कृति षड लक्षणा। भाषा किस प्रकार से बोली जाती थी और किस प्रकार से भाषा का व्यवहार किया जाता था,
किस प्रकार की वेशभूषा को धारण किया जाता था और किस प्रकार की कलाओं की परंपरा इस संस्कृति में जीवित रही हैं और कौन सी पुरातन कलाएं हैं। क्योंकि गीतम वाद्यम नृत्यम च त्रयाणाम संगीतम उच्यते, जैसे गीतवाद और संगीत मिलकर एक शब्द बनता है कला, ऐसे ही धर्म को समझने के लिए, संस्कृति को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके इतिहास को देखें। और जब तक हम इतिहास को नहीं देखते हैं वहां तक हमें उसकी पुरातनता, उसकी प्राचीनता, उसका गांभीर्य, उसकी फिलॉसफी और उसका अपना एक स्वतंत्र कल्चर हमें ख्याल नहीं आता है कि इस परंपरा का कल्चर क्या रहा है। बिफोर क्राइस्ट ईसाई धर्म बीसी में कैसा था और आफ्टर क्राइस्ट एसी में ईसाई धर्म की क्या परंपराएं रही हैं, ये एनालिसिस करने से हमें मालूम पड़ता है। हिजरी सन से पहले मोहम्मद साहिब के समय में, प्रोफेट मोहम्मद के हिजरी सन से पहले क्या स्वरूप रहा था और मोहम्मद साहब के बाद हिजरी सन शुरू होने के बाद किस प्रकार से कुरान और कुरान में अमेंडमेंट्स हुए, उसका हम इतिहास चिंतन कर सकते हैं। तो हमको अगर कोई पूछे, किसी ईसाई को पूछता कि तुम्हारा धर्म कब शुरू हुआ, तुम्हारी परंपरा कब शुरू हुई, तो वो साल, संवत, वार, तिथि, समय सब कुछ बताते हैं। कोई क्रिश्चियनिटी को मानने वाले को कोई अगर पूछे कि आप कैथोलिक या मेथोडिस्ट या जूइश या ऑर्थोडॉक्स किसी प्रकार के अगर आप क्रिश्चियन हैं तो ये क्रिश्चियनिटी कब से प्रारंभ हुई, तो आफ्टर क्राइस्ट की वो पूरा इतिहास हमें बताते हैं। अगर कोई हिंदू होने के नाते हमसे कोई पूछता है कि हिंदू धर्म कब प्रारंभ हुआ या ये इतिहास का प्राचीन पुरातन इतिहास क्या है, तो सबसे पहले तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसका पूरा नाम क्या है, इस संस्कृति को किस नाम से जाना जाता था। हिंद नदी के प्रांत में बसने वाली जो प्रजाति है उसे हिंद कहा गया, ब्रिटिशरों ने उसे इंड कहा, और इसीलिए उस खुदाई में जो पुरातत्व के संशोधन में खुदाई की गई वो हिंद नदी के प्रांत पर की गई, इसलिए उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन किया गया। तो जिस देश में हम जी रहे हैं उसका इतिहास क्या है, जिस परंपरा को हम मानते हैं उसका इतिहास क्या है, जिस धर्म को हम मानते हैं उसका इतिहास क्या है, और जिस संप्रदाय को हम फॉलो करते हैं उसका इतिहास क्या है। हम 4 दिशाओं में अलग अलग बात करते हैं। संप्रदाय का अर्थ, अंत में जो संप्रदाय की हमने बात करी है, संप्रदाय का अर्थ होता है परंपरा। ये शांकर संप्रदाय, ये माधव संप्रदाय, ये निम्बार्क संप्रदाय, ये रामानुज संप्रदाय, ये वल्लभीय संप्रदाय, ये गौड़ी संप्रदाय, ये राधा वल्लभ संप्रदाय, ये श्री माधव संप्रदाय, ये संप्रदाय जो हैं, ये संप्रदाय कोई फेंसिंग बनाने के लिए, वाड़ाबंदी करने के लिए या मतभेद खड़े करने के लिए संप्रदायों का निर्माण नहीं किया गया है। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है परंपरा, ग्रंथ, मंत्र, संत और दीक्षा, इन चारों की जो पुरातन परंपराओं का पालन करते हुए अपनी विचारधारा को अन्य को ट्रांसफर करता है, उसी को संप्रदाय कहा जाता है। संप्रदाय कोई ग्रुपिज्म नहीं है, संप्रदाय कोई फेंसिंग वाली कोई बात नहीं कि ये मेरी टेरिटरी है, तुम्हारी टेरिटरी। और इसीलिए संप्रदाय शब्द का अर्थ हिंदी में परंपरा होता है, और इसीलिए ये सभी संप्रदाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो मूलभूत रूप से परमात्मा की प्राप्ति करना, परमात्मा का अनुभव करना और उसे कर्म, ज्ञान, भक्ति के अलग अलग मार्गों से उसका विभाजन करते हुए उस परम ईश्वर, परम चैतन्य तक पहुंचना, यही सभी संप्रदायों का लक्ष्य है। तो संप्रदाय की जब भी हम बात करते हैं तब संप्रदाय की बात केवल कोई एक सेक्टिज्म नहीं है। संप्रदायज आर नॉट सेक्ट। संप्रदाय इटसेल्फ, हर संप्रदाय एक धर्म है, इटसेल्फ एक रिलीजन है।
उस रिलीजन को समझने के लिए, जैसे हम अपने धर्म की बात करें तो हमारे पूरे धर्म का नाम क्या है? कोई कहता है हिंदू धर्म, कोई कहता है हिंदू सनातन धर्म, कोई कहता है हिंदू वैदिक धर्म, कोई कहता है वैदिक सनातन धर्म। पूरे हमारे धर्म का नाम क्या है, इसे हमें विस्तार से समझना होगा। जब कभी कोई पूछता है, जैसे हम सभी जितने ईसाई धर्म हैं उसको क्रिश्चियनिटी कहते हैं कि दिस इज एन क्रिश्चियन रिलीजन। No matter what, they have different levels of understanding and they have different levels of culture of accepting the religion. Like Orthodox हैं, Methodist हैं, Catholic हैं, Jewish हैं। ऐसे ही हमारी परंपरा अपने धर्म को हिंदू वैदिक सनातन धर्म कहा गया है। हमारे धर्म का पूरा नाम है हिंदू वैदिक सनातन धर्म। हिंदू इसलिए कहा गया कि हिंद नदी के प्रांत पे बसे, जिस देश का प्राचीन नाम अज्रनाभ था। भारत देश का सबसे प्राचीन नाम अज्रनाभ था। उसके बाद भरत मुनि आए और इस देश का नाम भारत हुआ। फिर राजा भरत के समय में इसका नाम भारतवर्ष हुआ। फिर जब मुगल आए तब उन्होंने इसका नाम हिंदुस्तान किया। फिर जब ब्रिटिशर्स आए तब उन्होंने इस देश का नाम इंडिया रखा, और वो भी हिंदुस्तान के नाम से ही जाना जाता था, हिंदुस्तान के नाम से। लेकिन जब पार्टीशन के समय में जब वो यहां से निकले, उससे पूर्व जब पार्टीशन का प्रोसेस हाउस ऑफ रॉयल्स में लंदन में शुरू हुआ, उस समय इस नाम की मोहर लगाई गई कि इस देश को इंडिया के नाम से जाना जाएगा। और इंडिया के नाम से इसलिए जाना जाएगा कि इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन अगस्त इक्वल टू इंडिया, INDIA, इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन अगस्त इज इंडिया। ये जब हाउस ऑफ रॉयल्स में इस देश को इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में बोला जाने लगा, तब ब्रिटिशरों ने जाते जाते इस देश का नाम, इस हिंदुस्तान को इंडिया के नाम से संबोधन किया है। और उसी प्रकार से हिंदू वैदिक सनातन धर्म की जो व्यापकता है, इस संस्कृति की जो व्यापकता है, उसका अगर हम चिंतन करें तो उस व्यापकता को देखते हुए हमारे हृदय में ये भाव स्पष्ट होते हैं कि जैसे हिंदू वैदिक सनातन धर्म हमने कहा, वैदिक होने का मतलब क्या है? तो जैसे रूट्स जो हैं वो वेद हैं। इस संस्कृति की अगर हम संकल्पना एक वटवृक्ष के रूप में करते हैं तो वटवृक्ष के रूप में इसके रूट्स में वेद हैं, और चतुर्वेद इसके रूट्स में हैं। इसका जो थड़ है वो हिंदू धर्म है। इसकी जो शाखाएं हैं वो अलग अलग संप्रदाय हैं। उन शाखाओं पे लगने वाले जो हरे पत्ते हैं, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लहराते रहते हैं, वो मुस्कुराती हुई लहराती हुई हर संप्रदाय की अपनी फिलॉसफी है। पर्ण जो हैं, लीव्स आर द फिलॉसफी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन, जिसे हम संप्रदाय कहते हैं। और उन शाखाओं पे लगने वाले जो फल हैं, वो फल ही हर संप्रदाय के अपने आराध्य देव हैं। वो फ्रूट्स जो हैं, वो फल ही अपने आप में हर संप्रदाय के अपने आराध्य देव हैं। अगर वो शैव संप्रदाय के आराधक हैं तो उनके लिए भगवान महाकाल सदाशिव महादेव ही परम फल रूप उनके इष्ट हैं। अगर कोई शाक्त संप्रदाय को फॉलो करता है तो कालिका, चंडिका, भैरवी आदि जो गॉडेसेस फॉर्म में जो शक्ति की आराधना करने वाले हैं, वही उस शाखा का परम फल है। उस संप्रदाय के जो इष्ट हैं वही तो उसका परम फल होते हैं, और जो पत्ते हैं वो इसकी फिलॉसफी है। तो इस प्रकार से अगर हम धर्म को डिफाइन करके हम अगर इसको समझने की कोशिश करें तो रूट्स जो हैं वो हमारे रूट्स जो हैं वो वेद हैं। और वेद क्या है? यस्य निश्वसितम वेदाः,
निश्वसितम वेदाह का मतलब हुआ कि भगवान जब इस सृष्टि को बनाने से पूर्व गरुड़ासन पर विराजमान थे। किमासनंते गरुड़ासनाय किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम वागीश किंते वचनीयमस्ति। तो भगवान जब गरुड़ासन पर विराजमान होकर और इस संपूर्ण अंतर ब्रह्मांडीय क्षेत्र में जब विचरण कर रहे थे, उस समय मृत्युलोक नाम के इस लोक जिसको आज हम पृथ्वी कहते हैं, द प्लेनेट वी कॉल अर्थ, विच इज नोन एज ए मृत्युलोक, जहां कुछ भी शाश्वत नहीं है। प्रकृति, पुरुष, जीव और जीव मात्र जो कुछ भी सर्जित होता है वो विसर्जित होने के लिए ही होता है। और जो सर्जन को प्राप्त करता है, जो किसी वस्तु का सर्जन इस सृष्टि में होता है, इस लोक में होता है, वो आकार ग्रहण करता है। वो सर्जन आकार को प्राप्त करता है, वो आकार वजन को प्राप्त करता है, वो वजन के कारण से, आकार के कारण से स्थान को ग्रहण करता है, और स्थान से ग्रहण करने के कारण से वो नाम को ग्रहण करता है। Every creation has its own significance, its own identification, its own reason to be the part of this existence planet we call earth। और इसीलिए वेदों का जो प्रकार है हमारे यहाँ, वो निश्वसितम वेदाः, जब इस मृत्युलोक पृथ्वीलोक के ऊपर से गरुड़ासन पर विराजमान होकर और भगवान जब निकल रहे थे, उस समय भगवान के श्वास प्रश्वास की ध्वनि में से प्रस्फुटित होने वाली जो वाणी है, उसी को हमारे यहाँ वेद कहा गया है। और इसीलिए वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने उसकी रचना नहीं करी है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा गया कि भगवान के स्वयं की श्वासों की ध्वनि में से जो प्रकट हुए, उन्हीं को वेद कहा गया है। निश्वसितम वेदाः, तो वेद का ये स्वरूप है। और चतुर्वेदों का प्रकार, जब हम अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद की बात करते हैं, तो उसमें सभी वेदों का, चार वेदों का अपने आप में रूट्स के रूप में बहुत महत्व है। तो हम अपनी कल्चरल वैल्यूज को जानने के लिए, क्योंकि जब तक हम किसी संस्कृति का चिंतन करते हैं तो उसमें धर्म का चिंतन करते हुए हम हिंदू वैदिक, हिंद नदी के प्रांत पर वेद परंपराओं को मानने वाले सनातन धर्म, सनातन शब्द का अर्थ होता है जिसको काल कभी स्पर्श नहीं कर सकता, वो सनातनी है। और सनातनी जितने भी हैं वो सभी ये बात को मानते हैं कि इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को बनाने वाला जो है वो हमसे कई गुना ज्यादा शक्तिमान परम पिता परमात्मा है। और हम उसका अंश होने के कारण से, वो अंशी होने के कारण से हम उसका अंश हैं। यच्च अग्निम विस्फुलिंगा भवति, जैसे अग्नि में से तिनके निकलते हैं, ऐसे ही वो परम चैतन्य, परम तेजोमय, वो परमात्मा से ही इस जड़ जीव और सृष्टि का विचरण हुआ है, उत्पन्न हुई है। और इसीलिए इस धर्म को जानने के लिए, इस परंपरा को जानने के लिए यहां सनातन शब्द का प्रयोग किया गया। किसी ईसाई से पूछे कब धर्म शुरू हुआ, वो वार, संवत, तारीख, तिथि, समय सब कुछ बताएंगे। इस्लाम धर्म को मानने वाले कब प्रारंभ हुआ, हिजरी सन, मोहम्मद साहब कैसे गए, किस प्रकार से हुआ, उसका भी आपको डिटेल बताएंगे। हमसे अगर कोई पूछे हिंदू सनातन वैदिक धर्म कब प्रारंभ हुआ, तो कोई कहता है 5000 साल पहले हुआ, कोई 9000 साल पहले कहता है, कब गीता का ज्ञान हुआ तब कहता है, कोई कहता है कि भगवान वनवास पूरा करके जब पुनः अयोध्या आए तब हिंदू धर्म का प्रारंभ हुआ, कोई कहता है कि जब रावण का वध हुआ तब हिंदू धर्म प्रारंभ हुआ। कितनी अलग अलग मान्यताएं। हम अपने धर्म की उत्पत्ति के बारे में भी एक स्थिर विचार पर आकर और दृढ़ मान्यता से, दृढ़ विश्वास से हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा धर्म कब प्रारंभ हुआ। वास्तविकता तो यह है कि इस धर्म के नाम को जब हम चिंतन में रखते हैं
हिंदू वैदिक सनातन धर्म, तो हिंदू शब्द से हम स्पष्ट हो जाता है कि हिंद प्रांत पर बसने वाली, वैदिक परंपराओं को मानने वाली सनातनी परंपरा, सनातन धर्म है। ये सनातन शब्द का अर्थ क्या हुआ? जिसको काल स्पर्श नहीं कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस दिन चंद्रमा ने उदित होना और अस्त होना प्रारंभ किया, जिस दिन ने सूर्य ने उदित और अस्त होना प्रारंभ किया, जिस दिन पत्तों ने हरित होना शुरू किया, जिस दिन पुष्पों ने सुगंधित होना शुरू किया, जिस दिन पर्वतों ने स्थूल होना शुरू किया, जिस दिन नदी और झरनों ने प्रवाहित होना शुरू किया, और जिस दिन कोयल ने मधुर कलरव करना प्रारंभ किया, उसी दिन हमारे वैदिक सनातन धर्म की रचना हुई है। सृष्टि की उत्पत्ति से ही हमने इस संस्कृति, इस परंपरा, इस धर्म का उत्पत्ति से ही, इसीलिए दशावतार की परंपरा में भी आप देखो तो पहले जल जीव आए हैं। सांस भी ये कहता है कि जीव सृष्टि का निर्माण पहले समुद्र में हुआ, तो मत्स्य अवतार पहले हुआ है। फिर कुर्मा अवतार है जो जल में और थल में दोनों रह सकता है, और फिर हंसा अवतार है। जैसे हम संगीत में सप्त सुरावलियों के माध्यम से जान सकते हैं, सारे ग म प ध नि सा, सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति होते ही सा सागर के जीव अस्तित्व में आए। फिर रे जल में भी रह सकते हैं और रेती पे भी रेंग सकते हैं, ऐसे रेंगने वाले जीव अस्तित्व में आए, सा रे। फिर ग गगन में उड़ने वाले जीव अस्तित्व में आए, सारे ग। और जब गगन में उड़ने वाले जीव अस्तित्व में आए, उसके बाद फिर भगवान नरसिंह का प्रारंभ है। फिर मानव के रूप में, आदि मानव के रूप में, हम ये नहीं मानते हैं, डार्विन की फिलॉसफी के आधार पर सनातन विचारधारा कभी भी ये नहीं मानती है कि हमारे पूर्वज वानर रहे थे। हमारे पूर्वज कभी भी वानर नहीं थे। और हम तो ये मानते हैं, वयम अमृतस्य पुत्राः, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि रहे हैं, इसलिए जो जो हमारे आज भी गोत्र हैं, उस गोत्र के आधार पे, किसी का वशिष्ठ गोत्र है, किसी का वादुलस गोत्र है, किसी का भारद्वाज गोत्र है, किसी का कश्यप गोत्र है, तो हर व्यक्ति का अपना एक गोत्र होता है। उस ऋषि के नाम से उस गोत्र को प्रारंभ करने की परंपरा क्यों प्रारंभ हुई? क्योंकि हमारे मूल पुरुष जिस गोत्र के हम हैं, वही हमारे मूल पुरुष रहे। हम उन्हीं की संतान हैं, हम वानर की संतान नहीं है। और स्टोन एज की बात हम करते हैं, आयरन एज की बात हम करते हैं, तो लोह युग को और पाषाण युग को तो वैदिक संप्रदाय और वैदिक परंपराएं भी मानती है। सृष्टि की उत्पत्ति में सनातन इसे इसलिए कहा गया। और आज भी हमारे यहां वृक्ष वनस्पतियों को पूजने की परंपरा, पशुओं को पूजने की परंपरा, जीव जंतुओं को पूजने की परंपरा, अहिंसा की विचारधारा, ये जो कुछ प्रारंभ हुई है, ये सनातनी परंपराएं हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष ने प्रारंभ नहीं की हैं, लेकिन जब से इस सृष्टि ने जड़ जीव चैतन्य को जन्म देते हुए व्यक्ति ने जब अपने आप को पहचानना शुरू किया, सारे ग म, जब मनुष्य का निर्माण हुआ, उसके बाद प आता है। जब मनुष्य अस्तित्व में आया, उसके बाद सारे ग म प। जब प कब आता है? जब मनुष्य ने प्रेम और पराक्रम करना शुरू किया। भगवान नारायण के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। या स्वयं शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, तो पद्मनाभम सुरेशम, नाभि कमल में से सुरेश ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने पूछा, मेरा क्या कर्तव्य है? नारायण ने आदेश किया कि तुम सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना हुई। अब प्रकृति बन चुकी है, स्थूल पदार्थ भी बन चुके हैं, जड़ पदार्थ भी बन चुके हैं, और द्रवीभूत पदार्थ भी बन चुके हैं। अभी रसों की उत्पत्ति होना बाकी है। और उस बीच में इस सृष्टि को चलाएगा कौन? इसमें जीव सृष्टि कैसे उत्पन्न होगी?
तब जल जीव का, थल जीवों का, गगन के जीवों का सबका निर्माण होते होते ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी के साथ मिलकर एक पुरुष को जन्म दिया जिसे हम मनु कहते हैं, जिनको हम मनु के नाम से जानते हैं। और फिर ब्रह्मा और ब्रह्माणी ने एक अपोजिट सेक्स की व्यक्ति, एक स्त्री को प्रकट किया, और पुरुष और स्त्री माने मनु और शतरूपा, इन शतरूपा को प्रकट किया। और मनु और शतरूपा के संगम से जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई उसे हम मनुष्य कहते हैं। हम मनु महाराज की संतान हैं, इसलिए मनुष्य को मानव या मनुष्य के नाम से कहा जाता है। और इस प्रकार से अगर क्रोनोलॉजिकल पूरा ऑर्डर हम देखते हैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखते हुए उसकी परंपरा और जीव विज्ञान की सृष्टि की उत्पत्ति की बात को देखते हुए मनुष्य का निर्माण हुआ। सारे ग म प और मनुष्य के साथ प्रेम और पराक्रम ने जन्म लिया। फिर अग्नि कैसे उत्पन्न होती है, दोनों पाषाण को घिस के, और उसने स्टोन एज में अग्नि को प्रकट किया, प्रेम किया, जिससे उसकी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। प्रेम और पराक्रम, सारे ग म प। और जहां मनुष्य के जीवन में प्रेम तत्व का पदार्पण हुआ, उसी क्षण मनुष्य के जीवन में धर्म तत्व का भी विकास होने लगा, क्योंकि धर्म का मूल ही तो प्रेम है और प्रेम का मूल ही तो धर्म है। निष्काम भाव जो है, सारे ग म प ध, जैसे ही धर्म आया ऐसे ही निष्काम भाव उसके मन में प्रकट होने लगा, निष्कपटता उसके मन में आने लगी, अहिंसक भाव मन में प्रकट होने लगे। तो सारे ग म प ध नी, निष्काम भाव धर्म के बाद प्रकट हुआ। और जैसे ही प्रेम के कारण धर्म का अस्तित्व आया और जब धर्म निष्काम बनने लगा, तब पुनः उस मनुष्य की यात्रा साक्षात्कार की तरफ जाने लगी। इसलिए अंत में भी सा को रखा गया है, सारे ग म प ध नी सा। और इस प्रकार से इस संगीतमय यात्रा से हम जीव की और सृष्टि की उत्पत्ति का इतिहास समझ सकते हैं। और जब भारतीय संस्कृति की हम बात करते हैं तो काच तेषाम पुरा कथा, पुरा कथा के अनुरूप उसकी उत्पत्ति और उसकी स्थिति की बात करते हैं। संस्कृति की जो बात है उसमें ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान के आधार पर संस्कृति को पहचाना जाता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान विच इज अ नॉलेज ओरिएंटेड ज्ञान। व्हाट इज विज्ञान? विज्ञान, साइंस, which is experiment oriented. One is knowledge oriented, ज्ञान, विज्ञान, science is always experiment oriented. और तीसरा है जो हमारी संस्कृति की धरोहर है, जिसको हम प्रज्ञान कहते हैं। प्रज्ञान का अर्थ होता है, ज्ञान इज नॉलेज ओरिएंटेड, विज्ञान, साइंस इज एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड, एंड प्रज्ञान इज एक्सपीरियंस ओरिएंटेड। वो अनुभवैकलव्य है। हर व्यक्ति का अपना अलग अनुभव है, हर व्यक्ति की अपनी अलग चेतना है, हर व्यक्ति का अपना एक अलग रोमांच है, हर व्यक्ति का अपना एक अलग एहसास है। इफ यू कैन टर्न योर वरीज इन वर्शिपिंग, तो नारी में नहीं रखना है भाई, इसको लेके जाना है, इसलिए हम ले रहे हैं। ये तो वो भी रख दो, ही कुछ नहीं रखना है। उनको म्यूट कर दो। Sorry. So I'm saying, okay, if you can turn your worries in worshipping, आज के समय में ये बहुत सूत्र काम लगे ऐसा है, इसलिए स्मरण में आया कि if you can turn your worries in worshipping, कृष्ण can change your battles in blessings. तो हर प्रकार के संघर्ष में से बाहर आने की जो कला है वो प्रज्ञान हमें सिखाता है। ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान की संस्कृति को मानने वाली ये हिंदू वैदिक सनातन धर्म की जो विचारधारा है, और धर्म का बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य है। धर्म कोई संकुचित शब्दों में उसे नहीं कहा जा सकता। धर्मशास्त्र जो कहते हैं वो धर्म की बड़ी सूक्ष्म व्याख्या होती है। देखना आंखों का धर्म है, बोलना और स्वाद ग्रहण करना मुख का धर्म है, श्रवण करना कान का धर्म है। तो इंद्रियों के धर्म से प्रारंभ होकर आत्मधर्म तक की यात्रा, और इसीलिए
वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने जो जीवात्मा और परमात्मा के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए एक सूत्रपात किया जिसको हम आत्मनिवेदन कहते हैं। जैसे जीव वो जगदीश का अंश है, तो जगत में रहते हुए अगर उस जीव को जगदीश को पाना है तो सबसे पहली शर्त यह है, जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मामेकम शरणं व्रज, तो वल्लभाचार्य जी ने भगवान के उन शब्दों को ही स्वीकार करते हुए और शरणागति और समर्पण के मार्ग को केंद्र में रखकर और भक्ति की विचारधारा जगत को दी है। हम कहते हैं ना, ये कृपा मार्ग की बात जब परिचय आ रहा था तब आप बता रहे थे कि कृपा मार्ग ईश्वर की अनुरक्ति का, अनुराग का मार्ग, द पाथ ऑफ ग्रेस। तो ये कृपा का मार्ग क्या होता है? दो प्रकार से भगवान इस जीव सृष्टि को, इस संसार के भक्तों को या अपने जीवों को दो प्रकार से भगवान स्वीकार करते हैं, या तो करुणा करके करते हैं या कृपा करके करते हैं। करुणा करके कैसे करते हैं? भगवान को दया आ जाए, अब बहुत हुई इसकी कसौटी, अब ज्यादा उसे परेशान नहीं करना है, जैसा भी हो आखिर है तो मेरा, ऐसा करके भगवान बख्श देते हैं और उस पर एहसान करके और कह देते हैं भैया चल तू भी आज से मेरा, चल कोई बात नहीं, तेरी सब भूल माफ। यथा शिशुपाला नाम, जैसे शिशुपाल को किया, जैसे कंस को किया, जैसे रावण को किया, जैसे पूतना को किया, जैसे अघासुर को, धेनुकासुर को, बकासुर को, तृणावर्त को किया, उसी प्रकार से भगवान कसौटी तो करते हैं, क्योंकि भगवान की जो कसौटी करता है उसको भगवान भी कसौटी कर कर, और जैसे पॉपेट शो करने वाला व्यक्ति पॉपेट को ज्यादा नहीं देखता क्योंकि वो तो अपनी प्रैक्टिस से ही उंगलियों को चला लेता है, लेकिन जब वो उंगलियों को चलाता है वो अपनी नजर से जो लोग उस पॉपेट शो को देख रहे हैं उनके एक्सप्रेशंस के आधार पे वो स्टोरी और मूवमेंट्स को चेंज करता रहता है, उसको लाइवलीनेस देने के लिए। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी कहते हैं जगत क्रीडति योयतः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के लिए जो मूलभूत कारण है कौन है? जगत क्रीडति योयतः, तो वो जगत को बनाने वाला जो है, ये क्रीड़ा करने वाला है, इस क्रीड़ा भांड को जो अपने अंदर समाहित करते हुए उसको केवल अपने आनंद के लिए बाहर प्रकट करने वाला जो तत्व है, उस तत्व को भगवान सच्चिदानंद कहा जाता है। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और वो विश्व की उत्पत्ति का कारण बनते हुए वो परब्रह्म परमात्मा, उस प्रकार से इस मानव सृष्टि, जीव सृष्टि के उत्पत्ति का कारण स्वयं बन जाता है। तो जब संस्कृति की बात हो रही है, जब इतिहास की बात हो रही है, तो इतिहास के पृष्ठों को जब हम बदलते हैं तो कर्म की भी भूमिका आती है। जब इतिहास के पृष्ठ को हम देखते हैं तो ज्ञान की भी भूमिका आती है। इतिहास के पृष्ठों को हम देखते हैं तो भक्ति की परंपराएं भी आती हैं। और इतिहास की दृष्टि से ये कर्म, ज्ञान और भक्ति क्या है? जैसे महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, उन कुरुवंश के संतानों के बीच में किए जाने वाला जो युद्ध है, जिसे संसार में महाभारत के नाम से हम जानते हैं, तो महाभारत कहाँ हुआ हमें मालूम है, कब हुआ हमें मालूम है, कौन कौन के बीच हुआ हमें मालूम है, कौन उसका मूल कल्पित था हमें मालूम है, विलन कौन था, हीरो कौन था, सब हमें मालूम है। लेकिन कोई हमें पूछे कि महाभारत से आपने क्या सीखा, महाभारत से आपने क्या ग्रहण किया, महाभारत ने आपको क्या दिया? इतिहास दिया। तो हाँ, इतिहास तो महाभारत का बड़ा दिव्य है। भगवान वेदव्यास ने जिस प्रकार से महाभारत की रचना करते हुए उसके प्रसंगों को हमारे जीवन में आज भी उसका रिलेवेंस हम समझ सकते हैं। तो महाभारत ने हमें इतिहास दिया, महाभारत ने हमें बोध दिया, महाभारत ने हमें अनुभव दिया, महाभारत ने हमें दृष्टि दी, महाभारत ने हमें बहुत कुछ सिखाया।
पर इन उत्तरों से, इन जवाबों से वेदव्यास जी को संतोष नहीं हुआ। भगवान वेदव्यास जी कहने लगे कि महाभारत जैसे ग्रंथ ने भी आपको संसार में 5 अमृतों का दान किया है। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, गीता सहस्त्र नामानि स्तवराजो अनुस्मृति गजेंद्र मोक्षणम चैव पंच रत्नानि भारते। महाभारत में ये 5 रत्न हैं जो महाभारत ने इस भारतीय वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति को दिए हैं। सबसे पहले महाभारत नहीं होती तो कभी गीता का गान नहीं होता। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्माद विनस्रता। जो महाभारत नहीं होती तो गीता कैसे होती? तो सबसे पहले कौन से 5 रत्नों का दान महाभारत ने हमें किया है? अगर महाभारत की संस्कृति को देखें, क्योंकि इंद्रप्रस्थ की मध्य में बैठकर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं और ये इंद्रप्रस्थ टॉक हो रहा है, तो महाभारत के कुछ ऐसे अनकहे सत्य जिसका हम चिंतन करें तो सबसे पहले गीता, भगवत गीता महाभारत की देन है। सहस्त्र नामानि, विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत की देन है। महाभारत ने यह अमृत हमें दिया है। स्तवराजो, भीष्म स्तुति, शरशैया पर, बाणशैया पर सोए हुए भगवान की जो स्तुति पितामह भीष्म ने की है, वह भीष्म स्तुति महाभारत ने हमको संसार को दी है। गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, भीष्म स्तुति, गीता सहस्त्र नामानि स्तवराजो अनुस्मृति, अनुगीता, जो कुछ श्लोकों में ही संपूर्ण 18 अध्याय गीता का जो सार कहा गया वो अनुगीता के नाम से प्रसिद्ध हुई है। जो महाभारत के बाद कहा जाता है भगवान ने स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, जिसे अनुगीता कहा जाता है, द समरी ऑफ गीता। तो ये भी महाभारत के समय में हमको महाभारत के द्वारा प्राप्त हुई। और गजेंद्र मोक्षणम चैव पंचरत्नानि भारते, और गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष जो गजेंद्र की कथा आती है, उस गजेंद्र मोक्ष की स्तुति वंदना भी हमें महाभारत ग्रंथ से ही प्राप्त होती है। तो पंचरत्नानि भारते, इस 5 प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हमको महाभारत से हुई है। तो महाभारत हमें सिखाती है कि इस संस्कृति के सबसे बड़ी धरोहर क्या है? सबसे बड़ी धरोहर है जिस पर आप विश्वास करते हो, उसी पर आप अपनी श्रद्धा का सुमन चढ़ाइए। जिस पर आपको श्रद्धा है उसी का चिंतन आप अपने विचारों में और अपने वांछन में करिए। जिसके बारे में आप वांछते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं, धीमे धीमे आप उसके जैसे होने लगते हैं। तो उसके बारे में सोचिए, विचारिए, उसका चिंतन करिए। और चौथी अवस्था आती है, जैसा आप चिंतन कर रहे हैं, जैसा आप वांछन कर रहे हैं, जैसा आप विचार रहे हैं, तद अनुरूप आप अपने कर्म करिए, अपना व्यवहार करिए। ऐसा ना हो कि हम विचारते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये सिंक्रोनाइज होना चाहिए। एक आदर्श व्यक्ति के लिए, एक सज्जन व्यक्ति के लिए, एक धर्मवान व्यक्ति के लिए यह आदर्श जरूरी है कि हम जो विचारें वही बोलें, हम जो बोलें वही करें, और हम जो करें वो भी मां फलेषु कदाचन, फल की अपेक्षा रहित होकर हमारा कर्म है, हमारा सौभाग्य है। और गुरु आदेश से, इष्ट की कृपा से हम ये करने के लिए संकल्पित हुए हैं, तो ये करना ही मेरा धर्म है, परिणाम चाहे जो हो सो देखी जाएगी। इस निष्ठा से करना, इसी का नाम फलापेक्षा रहित कर्म है। और ये भाव कब प्रकट होता है? जब मामे कम शरणम व्रज, जब हमारी शरणागति दृढ़ हो जाती है। जब गोपियां चीरहरण के बाद उस कुंड से निकलकर घर जा रही थी, तो साथ में जो ग्वाल बाल थे उन्होंने गोपियों से पूछा कि तुमको कन्हैया पे आज बहुत क्रोध आया होगा, आज इसने तुम्हारे चीर चुरा लिए, इस समय तुम्हारी क्या वेदनाएं हैं? गोपियों ने क्या उत्तर दिया? कृष्ण की ओर देखते हुए कि कदम्ब पर बैठकर बंशी बजाने आना,
बहुत अच्छा लगता है मोहन, फिर ऐसे सताने आना। कदम्ब पर बैठकर बंसी बजाने आना बहुत अच्छा लगता है मोहन, फिर सताने आना। हम इसी घाट पर फिर नहाने आएंगी मोहन, तुम इसी घाट पर फिर हमें सताने आना। तो ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है वो परम शाश्वत संबंध है। महाभारत के युद्ध के बाद जब द्रौपदी को बधाई देने के लिए जब श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के जनाना महल में गए हैं, उस समय में द्रौपदी ने उनका अनादर किया कि माधव तुम मुझसे बात मत करो, केशव तुम मुझसे बात मत करो। तुमने विजयश्री हमको जरूर प्राप्त करवाई और पांडवों के शौर्य से और तुम्हारी नीति मार्गदर्शन से हमें विजयश्री का आस्वाद जरूर करने को मिल रहा है, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी हरकतों के कारण से बहुत नाराज हूं। और द्रौपदी यह आक्षेप करती है कृष्ण के ऊपर। और उस समय द्रौपदी को भगवान पूछते हैं, कृष्ण पूछते हैं कि कृष्णा कारण क्या है इस नाराजगी का। द्रौपदी उत्तर देती है कि आज बधाई देने आए हो, लेकिन तुमने पांडवों के जो संग किया, सहयोग भी दिया और कसौटी भी करी, अंत में जाकर उनको हमेशा बचाया, और तुमने मेरे संग भी वही किया जो तुम्हारी आदत है। जब मैंने बहुत अनुनय विनय किया, उसके बाद मेरे चीर पूर्ण करने के लिए तुम प्रकट हुए, चाहते तो पहले आ सकते थे। तब भगवान ने दो ही बातों का उत्तर दिया, द्रौपदी पहली बात, तैने जब अंध का पुत्र अंध ही होता है ये वाणी का दोष किया, उस समय तैने मेरी अनुमति कहां ली थी। अंध का पुत्र अंध ही होता है, जब ये दुर्योधन को तैने वचन कहे तब मेरी अनुमति नहीं ली थी, और जिसके कारण से युद्ध हुआ, मैं शांति दूत बनकर भी गया। और जहां तक चीर पूर्ण करने का सवाल है, तेरी वस्त्रों को पूर्ण करने का सवाल है, वहां तक तो जब तैने बुलाया तब मैं आया, और मेरा स्वभाव तू जानती है कि जब तक मुझे पुकारा न जाए वहां तक मैं कभी अपने आप के लिए भी नहीं आता हूं। जब दुशासन जनाना महल में आया, उस समय तैने युधिष्ठिर को आवाज लगाई थी, मुझे नहीं। फिर वो जब हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र की राज्यसभा में तुझे घसीटता हुआ लेकर आ गया, तब तैने भीम को कहा था, मुझे नहीं। जब उसने अपशब्द कहे तब तैने अर्जुन को पुकारा था, मुझे नहीं। जब वो अपशब्द की मर्यादाएं चूकने लगे, तब तैने नकुल सहदेव के पास सहयोग मांगा था, मुझसे नहीं। जब उन पांचों पांडवों ने नतमस्तक होकर कोई भी सहयोग नहीं दिया, तब तैने पितामह भीष्म को कहा था, मुझे नहीं। उन्होंने जब मस्तक नीचे कर लिया, तब तैने राजा धृतराष्ट्र को कहा कि आप तो पितृतुल्य हैं, आप सहयोग किए, उन्होंने भी नहीं किया। कुलगुरु द्रोणाचार्य को कहा, कृपाचार्य को कहा, सभी बड़ों को, गुरुजनों को तैने अनुनय विनय किया। जब कोई तेरे सहयोग में नहीं आया, तब अंत में जाकर तैने हे माधव, हे केशव, हे मुरारी, हे रक्षणहार, पाहिमाम रक्षमाम, पाहिमाम रक्षमाम, अंत में जाकर तैने मुझे पुकारा। और क्षणार्ध भी तैने मुझे पुकारा, और तेरे चीर परिपूर्ण करने में मैंने क्षणार्ध भी विलंब नहीं किया है। मैं क्षण भर में वहां प्रकट होकर तेरा विलंब किया, बशर्ते शर्त मेरी ये थी कि जब जब मुझे कोई पुकारेगा तब तब मैं उसके चीर पूर्ण करूंगा। तो तैने जब तक तुझे मुझसे ज्यादा अन्य पर भरोसा था, विश्वास थी, श्रद्धा था, श्रद्धा जब तक तुझे थी, विश्वास जब तक तुझे ज्यादा था, तब तक मैं मौन रहा। लेकिन जब तुझे लगा कि अब मेरे सिवाय तेरा कोई भी पालन नहीं कर सकता है, तब तक और तेरे स्मरण करते ही मैंने आकर और तेरे चीर पूर्ण किए हैं। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराये शोलों का डर नहीं। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराये शोलों का डर नहीं। मुझे खौफ आतिशे गुल से है कि कहीं चमन को जला न दे। आज की ये स्थिति है हमारी
कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, भाषा भूषा, पुरा कथा, इतिहास, भाषा भूषा कलाश्चैव संस्कृति षड्लक्षणा, ये भाषा भूषा और भोजन की हमारी परंपराएं इतनी समृद्ध हैं, इतनी विलक्षण हैं, इतनी अति विशिष्ट हैं, लेकिन उसको आज के स्वरूप में, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की हमारी प्रोफेशनल और सोशल, इंटेलेक्चुअल और साइकोलॉजिकल स्वरूप, इन सभी बातों को प्रदान करते हुए किस प्रकार से हम उसका साइंटिफिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल, इन तीनों एस्पेक्ट्स को हमारे सभी वैल्यूज़, जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उन्हें, जो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हैं उन्हें, जो फिलोसॉफिकल वैल्यूज़ हैं उन्हें, जो रिचुअलिस्टिक वैल्यूज़ हैं उन्हें, और जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उन्हें, इन पांच वैल्यूज़ को, कल्चरल, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, रिचुअलिस्टिक एंड ट्रेडिशनल, ये पांच वैल्यूज़ को जब तक हम लॉजिकल, साइंटिफिकल एंड स्पिरिचुअल अलग अलग रूप में इसे हम नहीं बताएंगे, इसे हम नहीं समझाएंगे, वहाँ तक आस्थावान को, बुद्धिमान को और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले को इस विचारधारा के सहज सूत्र भी बहुत आसानी से स्वीकार हो जाएंगे। लेकिन जिनका माइंडसेट है, जिनका ऑलवेज नेगेटिविटी की और उस माइंडसेट के कारण से एक अपना स्वतंत्र लॉजिक लेकर बैठे हैं और जिनको सत्य नहीं देखना है, उनके लिए तो तम नरम ब्रह्मापि न रंजयति, नीति शास्त्र ऐसे कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए तो स्वयं ब्रह्मा जी भी ज्ञान देने के लिए आ जाएं, तम नरम न रंजयति, उस नर को, उस मनुष्य को ब्रह्मा जी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इन वैल्यूज़ को, इनके जीवन मूल्यों को समझने के लिए अगर हमको ग्रंथ, मंत्र, पंथ और संत, इन चारों का समन्वय करके और आज के नए परिप्रेक्ष्य में, मॉडर्न एरा में अगर इसको समझना है तो हम बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे रूट्स, हमारे मूल मजबूत हैं इस संस्कृति के, वहाँ तक हमें कोई आंधी तूफान और कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज हमको अपने लक्ष्य से, अपने संकल्प से विचलित नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार की बात, मेरा समय परिपूर्ण हो रहा है, तो आज का जो संदर्भ है अपना भारतीय संस्कृति, तो ये 6 लक्षणों से संस्कृति को जाना जा सकता है। को धर्मः, दर्शनम किम वै, काच तेषां पुरा कथा, भाषा भूषा कलाश्चैव संस्कृति षड्लक्षणा। ये 6 प्रकार से हम भारतीय संस्कृति का, हिंदू धर्म की परंपरा का, इस देश का, इस देश की विचारधारा का और इसकी सनातन परंपराओं का और अपने संप्रदायों का चिंतन करते हुए संस्कृति को और संस्कृति के ये अलग अलग विधाओं को समझ सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। तो आज पुनः एक बार मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ। इंद्रप्रस्थ टॉक्स के माध्यम से, द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट, आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के माध्यम से पुनः एक बार मैं अनुग्रहित भाव प्रकट करते हुए, आप जितने भी श्रोता वर्ग यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने बहुत शांतचित्त से मुझे सुना और मुझे कुछ आपके साथ संवाद करने का सौभाग्य प्रदान किया। इतदर्थ पुनः मैं अपनी कृतज्ञता श्री निराजी मिश्रा जी के लिए व्यक्त कर रहा हूँ और ये सेतुबंधन का जो श्रेय है मैं पूर्ण रूप से श्री रंजीत जी चतुर्वेदी को प्रदान करते हुए आप सभी सुग्नजनों को, सभी प्रबुद्ध महानुभावों को, सभी पदासीन अधिकारियों को यहाँ से अपने अंतःकरणपूर्वक प्रणाम कर रहा हूँ और आप सभी के कल्याण की कामना परमपिता परमात्मा के चरणों में करते हुए आप सभी के अंतरात्मा में विराजमान परमात्मा के चरणों में मैं अपने शब्द सुमन समर्पित कर रहा हूँ। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। आरसी, प्लीज यू वांट स्टार्ट ऑफ विद अ क्वेश्चन? वाह, मतलब महाराज श्री, बहुत 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 धन्यवाद कि ये जो एक समय में आपने इतना ज्ञान दे दिया है हमको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं ज्यादा विलंब ना करके, हमारे एक तो सवाल है जिससे पहले हम फिर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने सवाल कर पाएंगे, आपसे ज्यादा समय नहीं लेंगे। एक हमारा ये सवाल है कि नीरा जी की एक कैंपेन है जी। और वो सीधा सवाल ये है कि नीरा जी चाहती हैं कि जैसे आपने इंडिया का जो एब्रिविएशन है INDIA जो आपने बताया, और उससे पहले हमारे जो जो नाम थे, वेद विलीन हो रहे हैं, वेदों को वापस लाना है, हमारी संस्कृति जा रही है, सब लाना है, हम सनातनी हैं, बट सनातन पास्ट है, आगे का समय भी देखना है। उनका ये मानना है कि इसका जो चाबी है, जो एक लॉक, जो पैंडोरास बॉक्स खोलना है हमको, वो जो चाबी है वो इंद्रप्रस्थ है, और इस दिल्ली का नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ होना चाहिए या नहीं, वो एक सवाल। और उसमें आप क्या हमारी सहायता कर सकते हैं, नीरा जी की सहायता कर सकते हैं हम सभी की। और दूसरा सवाल, नीरा जी का एक सपना है, आप कहिए, कि वो चाहती हैं, क्योंकि वो स्वयं द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट चला रही हैं, वो चाहती हैं कि इंद्रप्रस्थ के नाम के साथ साथ यहाँ एक विशाल मूर्ति लगे श्री कृष्ण जी की यमुना के तट पर। उसमें हम आपके व्यू जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट को बधाई देना चाहूँगा कि द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट अपने आप में ये नाम ही उसका संदेश है। अब रही बात उनके संकल्पों की, तो 3 बातें आपने कही। एक, वेदों का संरक्षण कैसे हो। दूसरी बात, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ हो कि न हो। और तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का स्थापन श्री यमुना जी के किनारे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, वेदों का संरक्षण साइंटिफिकल रूप से, आर्कियोलॉजिकल प्रकार से और साइकोलॉजिकल रूप से अलग अलग जो वेद की रचाएं हैं और अलग अलग जो स्वतंत्र वेद हैं, उन वेदों का जो विस्तार है, उन वेदों के जो स्वर हैं, तो जैसे कौन से वेद का कौन सा स्वर है, ये वेद पाठी जैसे करता है। जैसे सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षस सहस्त्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, ये कृष्ण यजुर्वेदी पुरुष सूक्त का जब पाठ करता है तो वो स्वर ऐसे बोलता है। शुक्ल यजुर्वेदी अलग प्रकार से बोलता है, कृष्ण यजुर्वेदी और शुक्ल यजुर्वेदी उसी की एक शाखा, तो वो क्या बोलेंगे, सहस्र शीरखा पुरुषः सहस्राक्षस सहस्त्रपात अब स भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। तो अब इन वेदों की जो स्वर की उदात्त अनुदात्त स्वरों का जो आंदोलन है, उसको हम आज आने वाली पीढ़ी को कैसे समझाएंगे। तो वेदों की गरिमा, वेदों का संशोधन और वेदों का प्रचार हो, इसके लिए अलग अलग प्रकार से प्रयास होने चाहिए। एजुकेशनल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर और सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी गरिमा और इसके प्राचीनता के ऊपर जो सवाल उठते हैं वो न उठे और उसका प्रमाण सहित प्रस्तुत हो, उसका स्वरूप ऐसा बनाना चाहिए वेदों की संरक्षणा के लिए। दूसरी रही बात, दिल्ली का नाम अवश्य रूप से इंद्रप्रस्थ होना चाहिए, बहुत गौरव की बात है। जो प्राचीन इतिहास कहता है, और इतिहास के आधार पर हम यूरोप कंट्रीज में देखते हैं कि वहाँ की नेपोलियन की और इनकी पुरानी हिस्ट्री को वापस रिशफल करके
और कई एरियाओं का, कई डिस्ट्रिक्ट्स का, कई अलग अलग काउंटीज़ का नाम वापस उन पुरातन विचारधारा और पुरातन इतिहास के नाम पर रखा जा रहा है और रखा गया है, तो ज़रूर रखना चाहिए। और साथ साथ में श्री कृष्ण जी की अगर प्रतिमा अगर श्री यमुना जी के किनारे दिल्ली में बनती है तो ये केवल हिंदू सनातन जगत के लिए नहीं अपितु विश्व के सभी मानव धर्मावलंबी जो हैं उनके लिए बहुत गौरव का विषय होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रसन्नता किसी को होगी तो वो माँ श्री यमुना जी को होगी। हाँ जी, Yes, नीरज जी। हाँ Any more questions, आपने Meera ji? तो महाराज श्री आपने तो इतनी अच्छी तरह से मेरी बात को अपने स्वर दे दिए हैं कि मैं क्या बोलूं। मैं बस आपसे एक मेरी विनती है जो मैं आपको लिखित में भेजूंगी। आपने द्रौपदी के बारे में जो थोड़ी बहुत बातें कही हैं, मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च करके लिखा है, वो मैं आपको पत्र द्वारा भेजूंगी और आपकी टिप्पणी उस पर चाहूंगी। जरूर जरूर। दूसरी चीज है कि मैं तो हम सबको हम सबकी जो परंपरा है, जो संस्कृति सिखाती है कि पितृ पूजा करनी चाहिए। मेरा थोड़ा सा ये रहा क्योंकि मैं दिल्ली में 25 साल से हूँ कि मुझे दिल्ली में राइट्स की कमेटी का मेंबर बनाया गया था, और जो मैंने हालत देखी, जो कलह हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ कहते हैं पितृ पूजा करने से कलह शांत होता है। तो माँ यमुना दिल्ली की कहनी चाहिए कुल देवी है, क्योंकि माँ यमुना ने ही इसको सींचा है। और कृष्ण भगवान ने धर्म युद्ध करा था, उसमें भी मेरा थोड़ा आपसे मैं मतभेद नहीं कहूंगी। मैं उसको महाभारत युद्ध नहीं कहती हूँ, मैं उसको कहती हूँ धर्म युद्ध या कुरुक्षेत्र युद्ध, क्योंकि पूरे महाभारत ग्रंथ में 20% युद्ध की बात है, 80% ज्ञान की बात है। तो ये दोनों हमारे पितृ हैं, और इनकी मूर्ति अगर आएगी तो हम अपने पितृ को सम्मान देंगे और हमारे देश में जो कलह है वो कम होगा। दूसरा, मैं चाहूंगी कि हमारे कुछ साथी जुड़े हैं, उनको मैं चाहूंगी कि वो क्वेश्चन पूछे, क्योंकि हमारा आपका तो पत्र द्वारा और फोन द्वारा संपर्क होता रहेगा। बहुत वरिष्ठ ऑफिसर्स जुड़े हैं और शंकराचार्य जी भी जुड़े हैं। तो आई थिंक राव साहब इज देयर। या राव साहब, आई वुड लाइक, राव साहब ने एक मुहिम छेड़ी है जिसके कृष्ण वाला तो है ही। राव साहब, यू मे प्लीज जस्ट आस्क योर क्वेश्चन टू ऑनरेबल रिस्पेक्टेड पूज्य स्वामी महाराज जी। हेलो, I think we have lost him. And